बच्चों, आज के हिंदी वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। గేమ్స్ని ఇష్టపడని పిల్లలంటూ ఉండరు. అందరూ గేమ్స్ని చాలా ఇష్టపడతారు. గేమ్స్ పీరియడ్ వచ్చింది అంటే చాలు వారి యొక్క ముఖాలలో ఆనందం వర్ణనాతీతం. అటువంటి ఆటలలో ఒకటైన ఫుట్బాల్ ఆట గురించి ఈ పాఠంలో ఇవ్వడం జరిగింది. चलिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य जानेंगे। खेल हमारे जीवन का अनोखा अंग है. ఆటలు మన జీవితంలో అపూర్వమైన భాగం. ఖేలోం సే మనోరంజన్ హోతా హై. ఆటల ద్వారా ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది. మానసిక్ వ శారీరక్ వికాస్ భీ హోతా హై. మానసిక మరియు శారీరక వికాసం కూడా జరుగుతుంది. खेलों से अनुशासन व नियमों का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है. ఆటల ద్వారా క్రమశిక్షణ మరియు నియమాలను పాటించడం అనే ప్రేరణ మనకు లభిస్తుంది. खेल में खेल भावना के साथ साथ सहयोग, सहनशीलता, नेतृत्व, अनुशासन आदि की भावना होती है. ఆటలలో ఆట భావముతో పాటుగా సహకారము, సహనము, నాయకత్వము, క్రమశిక్షణ మొదలుగున్న భావాలు అందులో ఉంటాయి. फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है. फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए. यूँ भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं. इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया. अच्छा बच्चों, अब इसका भाव तेलुगु में जानेंगे. फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है. फुटबॉल प्रायः माने यूजुअली यानी సాధారణంగా हमारे सभी स्कूलों में మన అన్ని స్కూళ్ళలోనూ खेला जाता है ఆడుకోబడుతుంది. फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए. फुटबॉल దొరకగానే ఆడటానికి బయలుదేరిపోయాం. यूँ भी हम लोग వాలీబాల్ తో खेलते ही आए हैं. అయితే వాలీబాలు మనం ఆడుతూనే వచ్చాం. इस तरह खेलते खेलते ఈ విధంగా ఆడుతూ ఆడుతూ फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया. ఫుట్బాల్ మీద అభిరుచి పెరిగింది. और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया. ఈ విధంగా ఫుట్బాలు నా ఇష్టమైన ఆటగా మారిపోయింది. क्या दिन क्या रात, क्या खेत क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल. शुरू शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा. तब यह मेरे लिए खिलौना था. बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है. हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है. दो टीमें खेलती हैं, हज़ारों लोग देखते हैं. क्या दिन क्या रात, పగలని కాదు రాత్రని కాదు, क्या खेत क्या मैदान, పొలమని కాదు మైదానమని కాదు, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल, సమయం దొరకగానే నేను నా ఫుట్బాల్. शुरू शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा. మొదట్లో నేను ఒక్కడినే ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటూ ఉండేవాడిని. तब यह मेरे लिए खिलौना था. అప్పుడు ఇది నాకు ఒక ఆట వస్తువు మాత్రమే. बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है. తర్వాత తెలిసింది ఇది అందరి వస్తువు అని. అనోఖీ చీజ్ హై, అపూర్వమైన వస్తువు అని. హా, ఫుట్బాల్ సబ్కీ చీజ్ హై. అవును, ఫుట్బాల్ అందరి వస్తువు. దో టీమేం ఖేల్తీ హై, రెండు టీములు ఆడతాయి. హజారంలో దేఖ్తే హై, కొన్ని వేల మంది చూస్తారు. फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है. मिलजुल कर खेलने का खेल है. यह ताकत और सावधानी का खेल है. यह चुस्ती का खेल है. यह नज़र का खेल है. फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र. यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमज़ोरी सबकी कमज़ोरी है. फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं. फुटबॉल आटा
అకేలే ఏక్ ఆద్మీ కా ఖేల్ నహీ, ఒంటరిగా ఒక మనిషి ఆడుకునే ఆట కాదు. యహ టీమ్ కా ఖేల్ హై, ఇది టీం ఆట. మిల్జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై, అందరూ కలిసికట్టుగా ఆడుకునే ఆట. యహ తాకత్, ఇది బలము. ఔర్ సావధాని కా ఖేల్ హై, జాగ్రత్తగా ఆడే ఆట. యహ చుస్తీ కా ఖేల్ హై, ఇది చురుకుదనంతో కూడిన ఆట. యహ నజర్ కా ఖేల్ హై, ఇది దృష్టితో కూడిన ఆట. ఫుట్బాల్ పర్ నజర్, ఫుట్బాల్ మీద దృష్టి పెట్టడం. సాథియం పర్ నజర్, తోటి వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టడం. విపక్షియోం పర్ నజర్, ప్రతిపక్షం వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టడం. గోల్ పర్ నజర్, గోల్ మీద దృష్టి పెట్టడం. లైన్ పర్ నజర్, బాల్ లైన్ దాటి వెళ్లకుండా లోపలే ఆడేటట్టుగా ఆ లైన్ మీద దృష్టి. సమయ్ పర్ నజర్, సమయాన్ని చూసుకుంటూ ఆ సమయం లోపల గోల్స్ వేయాలి కాబట్టి ఆ సమయం మీద దృష్టి పెట్టడం. అప్నే పర్ నజర్, ముఖ్యంగా మన మీద మనకు కంట్రోల్ ఉండడం, అంటే మనం జాగ్రత్తగా ఆడటం. యహ ఐసా ఖేల్ హై జిస్మే ఏక్ కి తాకత్ సబ్కి తాకత్ హై, ఇది ఎటువంటి ఆట అంటే ఇది ఒకరి బలం అందరికీ బలాన్ని చేకూరుతుంది. ఏ విధంగా అంటే ఒక ఆటగాడు ఆ బంతిని జాగ్రత్తగా ఎదుటి వాళ్ళ నుండి రక్షిస్తూ తీసుకుపోయి గోల్ చేస్తాడు. ఆ విధంగా ఒకరి బలం అందరికీ బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఒకరి బలహీనత అందరి బలహీనతగా మారుతుంది. ఎలాగంటే గోల్ కీపర్ గనుక బాల్ని రక్షించకపోతే ప్రతిపక్షానికి ఒక గోల్ లభిస్తుంది. దానితో అతని బలహీనత అందరి బలహీనతగా మారుతుంది. फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है. इसमें जो वैरभाव रखे वह खिलाड़ी ही नहीं. दो पक्ष हैं, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा. इसमें नाराज़गी या वैरभाव की क्या बात. इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे. जीतने की कोशिश करो. विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो. अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो. ఫుట్బాల్ సచాయి కా ఖేల్ హై, ఫుట్బాల్ నిజాయితీగా ఆడుకునే ఆట. యహ ప్రేమ్ కా ఖేల్ హై, ఇది ప్రేమతో ఆడుకునే ఆట. ఇస్మే జో వైర్భావ్ రఖే వహ ఖిలాడి హీ నహీ, ఇందులో ఎవరైతే వైరభావాన్ని చూపిస్తాడో అతను ఆటగాడే కాదు. దో పక్ష హై, రెండు టీములుంటాయి. ఏక్ జీతేగా और दूसरा हारेगा, ఒకరు నెగ్గితే వేరొకడు ఓడిపోతాడు. ఇస్మే నారాజ్गी యా వైర్భావ్ కి క్యా బాత్, ఇందులో కోపము లేక వైరభావము అనేది ఎందుకు. ఇస్ బార్ హారోగే తో అగ్లీ బార్ జీతోగే, ఈసారి ఓడిపోతే నెక్స్ట్ టైం నెగ్గుతావు. జీతనేకి కోషిష్ కరో, నెగ్గడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. విపక్షి అగర్ జీత్తా హై తో ఉస్కే ఖేల్ కో సమఝో, ప్రతిపక్షం వాళ్ళు నెగ్గితే వారి ఆటను అర్థం చేసుకో. ఔర్ ఉస్కి సరాహనా కరో, అంత బాగా ఆడినందుకు వాళ్ళను మెచ్చుకో. అప్ని హార్ సే భీ సీఖో, నీ ఓటమి నుండి కూడా నేర్చుకో. ఔర్ అప్ని జీత్ సే భీ సీఖో, నీ గెలుపుతో కూడా నేర్చుకో. आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में ज़रूर खेलूँगा. यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ. आज नहीं तो कल मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी. आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला. आज तक నేటి వరకు, మైనే నేను, కిసి బడీ టీమ్ మే నహీ ఖేలా, ఏ పెద్ద టీంలోనూ ఆడలేదు. పర్ ఏక్ దిన్ మై అప్నే హీ దేశ్ కి కిసి బడీ టీమ్ మే జరూర్ ఖేలూంగా, కానీ నేను మన దేశానికి సంబంధించిన పెద్ద టీంలో తప్పకుండా ఆడతాను. యహీ నహీ, అంతేకాదు, మై బాహర్ భీ ఖేల్నా చాహతా హూ, నేను బయట దేశాలతో కూడా ఆడాలనుకుంటున్నాను. ఆజ్ నహీ తో కల్ మేరీ ఇచ్ఛా జరూర్ పూరీ హోగి, ఈరోజు కాకపోతే రేపు నా కోరిక తప్పక నెరవేరుతుంది. अच्छा बच्चों, अब आपके मटेरियल में दिए गए व्याकरणांश देखेंगे. तत्सम शब्द, तद्भव शब्द. पर्वत,
तत्सम होगा तो उसका तद्भव शब्द है पहाड़। धैर्य, इसका तद्भव शब्द होगा धीरज। सिर, इसका तद्भव शब्द है सर। शीर्ष, इसका तद्भव शब्द है शीश। नभ, इसका तद्भव शब्द है आसमान। क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। कैलाश अंदर बैठा है। बैठा है, कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। यहाँ पर अंदर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसलिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है अंदर। वह किधर गया? गया వెళ్ళాడు। किधर? ఎటు। ఎటు వెళ్ళాడు। एटू यानी किधर जो है वो दिशावाचक क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसमें इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है किधर। बच्चों, इधर उधर मत घूमो। इस वाक्य में इधर उधर जो शब्द हैं वो दिशावाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो इस वाक्य में इधर उधर क्रिया विशेषण है। कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? कल। तो कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में कल जो है वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55। 2/4 को क्या कहते हैं हिंदी में? 2/4 को 2.25 कहते हैं। 1/4 को क्या कहते हैं? 1/4 को 1.25 या 1/4 कहते हैं। 2.5 को क्या कहते हैं हिंदी में? 2.5 को 2.5 कहते हैं। 2/3/4 को 2.25। 1/3/4 को 2.25। सही कारक चिन्ह लिखिए। पंजाब डैश माहिया गीत गाए जाते हैं। पंजाब डैश माहिया పాటలు పాడుకోబడతాయి। पंजाब लो यानी लो लोपला, इसके लिए प्रयोग में आने वाला कारक चिन्ह है में। में माने लो लोपला। पंजाब में माहिया गीत गाए जाते हैं। हिंदी डैश सारे भारत पहचान होती है। हिंदी से सारे भारत की पहचान होती है। रानी सेना अनुशासन कमी थी। रानी की सेना, सेना स्त्रीलिंग है इसलिए की संबंध कारक का प्रयोग होगा। रानी की सेना में यानी लो लोपला सैन्యంలో अनुशासन की कमी थी। गोदावरी नदी जल आंध्र प्रदेश लाखों एकड़ भूमि सिंचाई होती है। गोदावरी नदी के जल से, गोदावरी नदी नीటి द्वारा आंध्र प्रदेश के लाखों एकड़ भूमि, आंध्र प्रदेश యొక్క లక్షల ఎకరాల భూమి की सिंचाई होती है, भूमि पंडिंचबడుతుంది। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पर्वत नदियाँ, पर्वत और नदियाँ द्वंद्व समास है। जीवन काल, जीवन का काल तत्पुरुष समास। चांद सितारे, चांद और सितारे और का प्रयोग हुआ है द्वंद्व समास। कन कन यानी हर कन अव्ययी भाव समास। शुभागमन, शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास। मन माना, मन से माना करण तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा
संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए जो हैं वो संप्रदान कारक हैं, इसलिए यहाँ पर समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, अपादान तत्पुरुष समास। पराधीन, पर के अधीन, संबंध तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यानी पर जो है अधिकरण कारक है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास। चौराह, चार राहों का समूह, द्विगु समास, यानी यहाँ पर नंबर यानी चार राहों का समूह, तो यह द्विगु समास है। हार जीत, हार और जीत द्वंद्व समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास। संधि विच्छेद कीजिए। परमाणु, परम प्लस अणु, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। सदैव, सदा प्लस एव। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य। अत्यंत, अति प्लस अंत। गायक, गई प्लस अक। दिग्गज, दिक प्लस गज। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्धी। निश्चय, निह प्लस चय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो प्रकृति से संబంధిत हो, అంటే ప్రకృతితో సంబంధించినది అనే సంబంధం కలిగి ఉన్నది, ప్రాకృతిక్। जो सबसे आगे रहने वाला, అందరికంటే ముందు ఉండేవాడు, అగ్రణీయ। जीतने की इच्छा रखने वाला, నెగ్గాలన్న కోరిక కలిగినవాడు, జిగీషా। जीवन भर, జీవితాంతము, ఆజీవన్। प्रतिकूल पक्ष का, ऑपोजिट ग्रुप की చెందినవాడు यानी विपक्षी। मुहावरे का अर्थ लिखिए। दाल में काला होना यानी संदेह की बात होना, అంటే ఏదో ఒక సందేహము కలిగి ఉండడం। లోహే కే చనే చబానా, కఠిన్ కామ్ కర్నా, చాలా కష్టమైన పని చేయుట। శ్రీ గణేష్ కర్నా, ఆరంభ కర్నా, ప్రారంభించుట। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज भागना, చాలా స్పీడుగా పరిగెట్టుట। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, చాలా हार्ड वर्क చేయుట। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, यहाँ पर अध्यापक जो है उसका लिंग बदलना है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। अध्यापिका पाठ पढ़ाती हैं, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए, तो इसलिए पढ़ाती हैं। प्राचार्य जी कॉलेज में घूम रहे हैं। प्राचार्य, प्राचार्य का स्त्रीलिंग शब्द होगा प्राचार्या। प्राचार्या जी कॉलेज में घूम रही हैं। प्रधानाध्यापक भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक जो है उसका स्त्रीलिंग रूप होगा प्रधानाध्यापिका। प्रधानाध्यापिका भाषण दे रही है। अपराधी जेल से भाग गया। अपराधी इसका स्त्रीलिंग रूप होगा अपराधिनी। अपराधिनी जेल से भाग गई। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। हमारे देश में एक नदी बहती है। यहाँ पर नदी अंडरलाइन किया गया है, सो नदी का प्लूरल फॉर्म होगा नदियाँ। हमारे देश में अनेक यानी एक जो है अनेक में बदल जाएगा। अनेक नदियाँ बहती हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार होनी चाहिए। पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है। पर्वत पर यानी यहाँ पर पर्वत के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए पर्वत का प्लूरल फॉर्म होगा पर्वतों पर चढ़ना मुश्किल है।
झरना बह रहा है। झरना का प्लूरल फॉर्म होगा झरने। झरने बह रहे हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। पेड़ पर पक्षी हैं। यहाँ पर पक्षी जो है उसका प्लूरल फॉर्म होगा पक्षी। ईकारांत पुंलिंग शब्द है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन रूप जैसे का तैसा ही होगा, यानी पक्षी का प्लूरल फॉर्म होगा पक्षी। पेड़ पर पक्षी हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। यह मेरा खिलौना है। यह मेरा खिलौना है। खिलौना, खिलौना सिंगुलर फॉर्म में है, तो खिलौना का प्लूरल फॉर्म होगा खिलौने। तो यहाँ पर यह जो है उसे भी बदलना पड़ेगा। यह का प्लूरल फॉर्म होगा ये मेरा का प्लूरल फॉर्म होगा मेरे। ये मेरे खिलौने हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। अनोखी चीज़ लाई गई है। अनोखी चीज़, चीज़ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग ना हो तो उसके साथ एम लगाना है, यानी चीज़ का प्लूरल फॉर्म होगा चीज़ेम। अनोखी चीज़ेम लाई, लाई के ऊपर भी अनुस्वार लगाना है। गई, गई के ऊपर भी अनुस्वार लगाना है। है, है के ऊपर भी अनुस्वार लगाना है। तो इसका आंसर होगा अनोखी चीज़ें लाई गई हैं। मैं बड़ी टीम में खेलूँगा। मैं का बहुवचन रूप होगा हम बड़ी टीम में खेलेंगे। साथी पर नज़र रखो। साथी का बहुवचन रूप होगा साथी, लेकिन यहाँ पर का यानी पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए साथियों होगा। साथियों पर नज़र रखो। मैं आपके साथ खेलता हूँ। मैं का बहुवचन रूप होगा हम आपके साथ खेलते हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। निर्देशानुसार काल बदलिए। छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाता हूँ। इसको भविष्यत काल में बदलने के लिए दिया गया है। तो छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाऊँगा। भविष्यत काल में मैं कर्ता के रूप में आने पर मूल क्रिया के साथ ऊँगा का प्रयोग होता है। छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के पास जाऊँगा। राम यहाँ आएगा। इसको वर्तमान काल में बदलना है। राम यहाँ आता है। हम बाजार जाते हैं, भविष्यत काल में बदलिए। हम बाजार जाएंगे। हम यहाँ पर कर्ता के रूप में आया है, तो इसलिए प्लूरल फॉर्म है, तो मूल क्रिया के साथ एंगे का प्रयोग होगा। हम बाजार जाएंगे, जाएंगे। रोहिणी परिश्रम करती है, भविष्यत काल में बदलिए। रोहिणी परिश्रम करेगी। कर प्लस एगी करेगी, यानी रोहिणी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एगी का प्रयोग हुआ है। शुद्ध रूप लिखिए। मेरे को 1 रुपया दो। इस वाक्य में मेरे को जो है वो अशुद्ध प्रयोग है, इसलिए वहाँ पर रहना है मुझे। मुझे 1 रुपया दो। मैंने बोला, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, यानी बोल जो है वो अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर होगा मैं बोला। वह उसके भाई के साथ खेलता है। वह उसके भाई के साथ खेलता है, उसके भाई नहीं कहना है, यहाँ पर वह अपने भाई के साथ खेलता है। मैं मिठाई खाया। यह वाक्य भूतकाल में है। खाया जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर होगा मैंने मिठाई खाई। मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया खाई।
मैंने उसको कहा, मैंने उससे कहा। 2 दिन के लिए छुट्टी दीजिए, 2 दिन की छुट्टी दीजिए। मैं आपका दर्शन करने आया था। दर्शन जो है वो बहुवचन रूप है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया था। दर्शन के पहले आपके का प्रयोग होना चाहिए। समाज के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। समाज के अंदर नहीं कहना है, यहाँ पर समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। वह सज्जन व्यक्ति है, वह सज्जन है। यहाँ पर व्यक्ति का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। उपसर्ग पहचानिए। प्रकृति, प्रकृति में उपसर्ग होगा प्रा। आजीवन, आ। अनुशासन, अनुशासन में उपसर्ग होगा अनु। चिरस्थायी, इसमें उपसर्ग होगा चिर। सत्कर्म, इसमें उपसर्ग है सत। उत्साह, इसमें उपसर्ग होगा उत। अत्यंत, इसमें उपसर्ग होगा अति। अनुशासन, इसमें उपसर्ग है अनु। सहयोग, इसमें उपसर्ग है सह। पराजय, इसमें उपसर्ग है परा। प्रत्यय लिखिए। गहराई, इसमें प्रत्यय है आई। स्वतंत्रता, इसमें परसर्ग होगा ता। लंबाई, इसमें प्रत्यय है आई। नैतिकता, इसमें प्रत्यय होगा ता। धार्मिकता, इसमें प्रत्यय है ता। अच्छाई, इसमें प्रत्यय है आई। मानसिक, इसमें प्रत्यय है इक। शारीरिक, इक। सहनशीलता, ता। सच्चाई, इसमें प्रत्यय है आई। खुशी, इसमें प्रत्यय है ई। पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, नभ के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, आसमान, गगन। विकास, विकास के पर्याय शब्द हैं उन्नति, वृद्धि। सागर, इसके पर्यायवाची शब्द हैं समुद्र, जलधि, पयोधि। देह, इसके पर्यायवाची शब्द हैं शरीर, काया। नौका, इसके पर्यायवाची शब्द हैं नाव, तरनी, पोत। मित्र, इसके पर्याय शब्द हैं दोस्त, सखा। सूरज, इसके पर्याय शब्द हैं सूर्य, भानु, भास्कर। इनाम, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पुरस्कार, उपहार। प्रसन्नता, इसके पर्यायवाची शब्द हैं संतोष, प्रफुल्लता, आनंद। पर्वत, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़, गिरी, शैल। विपरीत अर्थ लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। न्याय, इसका अर्थ है जस्टिस। अन्याय, इसका अर्थ है इनजस्टिस। न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। धैर्य, यानी पेशेंस। अधैर्य, इम्पेशेंस। हिंसा, वायलेंस। अहिंसा, नॉन वायलेंस। शांति, पीस। अशांति, डिस्टर्बेंस। यश, फेम। अपयश, इनफेमी। धर्म, जस्टिस। अधर्म, इनजस्टिस। गौरव, डिग्निटी। अगौरव, लोनेस। सत्य, ट्रूथ। असत्य, फॉल्स। जय, विक्टरी। पराजय, डिफीट। जीतना, टू विन। हारना, टू लॉस। एकता, यूनिटी। अनेकता, डाइवर्सिटी। कमजोरी, वीकनेस। ताकत, स्ट्रेंथ। इच्छा, डिजायर।
अनिच्छा, अनविलिंगनेस। संज्ञा शब्द पहचानिए। कमल ने अपनी घड़ी बेच दी। इस वाक्य में संज्ञा शब्द होंगे कमल और घड़ी। कुत्ता उठकर भाग गया। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है कुत्ता यानी डॉग। आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगा। इसमें संज्ञा शब्द है संगीत। चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। इसमें संज्ञा शब्द है चिड़िया, राजा। विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगा। इसमें विशेषण शब्द हैं सहमा और उदास। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। इसमें विशेषण शब्द हैं स्वच्छ और स्वस्थ। आप मानवीय दृष्टिकोण से सोचिए। इसमें विशेषण शब्द है मानवीय। खेती की बुरी दशा के कारण किसानों की हाल बिगड़ती जा रही है। इसमें विशेषण शब्द है बुरी। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पहचानिए। उठाना, लेपुटा सकर्मक क्रिया है। जाना, वेल्लुटा अकर्मक क्रिया है। लहराना, రెపరెపలాడుట అకర్మక క్రియ है। लाना తీసుకువచ్చుట सकर्मक क्रिया। कहना అనుట सकर्मक क्रिया। उठना లేచుట अकर्मक क्रिया। गिरना పడుట अकर्मक क्रिया। छोड़ना విడిచిపెట్టుట सकर्मक क्रिया। फैलना వ్యాపించుట अकर्मक क्रिया। लेना తీసుకొనుట सकर्मक क्रिया। वाक्य सही क्रम में लिखिए। जगाओ को आदमी इस आदमी को जगाओ ఈ మనిషిని లేపండి। कीजिए सपने साकार देखिए उन्हें और सपने देखिए और उन्हें साकार कीजिए। नहीं की कोशिश होती हार करने वालों। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ప్రయత్నం చేసే వాళ్లకు ఓటమంటూ ఉండదు। श्रमिक है प्रगति की देश ही प्रसन्नता की। श्रमिक की प्रसन्नता ही देश की प्रगति है। శ్రమికుని యొక్క సంతోషమే దేశానికి प्रगति यानी डेवलपमेंट। अच्छा बच्चों, कहानी लेखन देखेंगे। संकेत शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। कालू అంటే పేరు। చర్వాహ మేకలను మేపుకునేవాడు। బకరియా మేకలు। జంగల్ అడవి। బహుత్ షరారతీ చాలా అల్లరివాడు। ఏక్ దిన్ ఒకరోజు। झूठा అబద్ధపు। చిల్లానా అరుచుట। భేడియా బచావో తోడేలు రక్షించండి। కిసాన్ రైతులు। మదద్ హెల్ప్। దౌడ్ పడే పరిగెట్టారు। లేకిన్ కానీ। సబ్ అందరూ। సమజ్ కర్ అర్థం చేసుకొని। డాంట్ కర్ తిట్టి। దూసరీ బార్ రెండవసారి। కిసానోం రైతులు। ఫట్కారా తిట్టిపోశారు। ఓర్ లౌట్ వైపు తిరిగి ప్రయాణం। ఏక్ దిన్ ఒకరోజు। సచ్ముచ్ నిజంగానే। సహాయత సహాయము। చిల్లానే అరచిన। సంఝా అర్థమైంది। మజాక్ కర్ వెటకారము। భేడియా తోడేలు। మార్డాలా చంపేసింది। చర్వాహ మేకల కాపరి। భూల్ తప్పు। పచ్తాతా రహ గయా పశ్చాత్తాప పడుతూ ఉండిపోయాడు। अच्छा बच्चों, इसे अब पूरा करेंगे। बच्चों, पहले इसका हमें शीर्षक लिखना होगा। तो इसका शीर्षक है झूठ का फल। అబద్ధము యొక్క ఫలితము। कालू नामक चरवाह बकरियां चराने के लिए। कालू पेरुगल। चरवाह कापरी। बकरियां चराने के लिए మేకలను మేపడానికి। जंगल में जाया करता था అడవిలోకి వెళ్ళేవాడు। वह बहुत शरारती था అతను చాలా అల్లరివాడు। एक दिन ఒకరోజు।
उसने అతను झूठी चिल्लाना ఆరంభ कर दिया అబద్ధంగానే అరవడం ప్రారంభించాడు. భేడియా ఆయా తోడేలొచ్చింది. బచావో రక్షించండి. ఖేతో మే కామ్ కర్నే వాలే కిసాన్ ఆ పొలాలలో పనిచేసుకునే రైతులు ఉస్కీ మదద్ కే లియే అతనికి హెల్ప్ చేయడానికి దౌడ్ పడే పరిగెట్టారు. లేకిన్ కానీ వహ్ సబ్ మజాక్ సమజ్కర్ అదంతా అబద్ధము వెటకారము అని భావించి కాలుకో డాంట్కర్ కాలుని తిట్టి చలేగయే వెళ్ళిపోయారు. ఉసీ తరహా అదేవిధంగా దూసరీ బార్ భీ కియా రెండవసారి కూడా అతను చేశాడు. కిసానోనే రైతులు చర్వాహేకో ఫట్కారా చర్వాహేను తిట్టిపోశారు. ఔర్ ఖేతోంకి ఓర్ మరియు ఖేతోంకి ఓర్ యాని పొలాల వైపు లౌట్ గయే తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఏక్ దిన్ ఒకరోజు భేడియా తోడేలు సచ్ముచ్ ఆ పహుంచా నిజంగానే వచ్చేసింది. సహాయతా కే లియే చిల్లానే పర్ సహాయం కోసం అరవగా కిసానోనే సమఝా రైతులు అనుకున్నారు వహ మజాక్ కర్ రహా హే అతను వెటకారం చేస్తున్నాడు అని. భేడియనే కయి బకరియోం కో మార్ డాలా ఆ తోడేలు చాలా మేకలను చంపేసింది. అబ్ చర్వాహా అప్ని భూల్ పర్ పछताता రహ గయా ఇప్పుడు ఆ గొర్రెల కాపరి తాను చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపపడుతూ ఉండిపోయాడు. శిక్ష झूठे వ్యక్తి కి సచ్ బాత్ పర్ భీ ఎల్లప్పుడూ అబద్ధమాడే వ్యక్తి నిజం మాట్లాడినా లోగ్ విశ్వాస్ నహీ కర్తే హే ప్రజలు ఆ మాటలను నమ్మరు. बच्चों इन व्याकरणांशों को अपने नोट्स में लिखिए और उसके साथ साथ कहानी लेखन भी अपने नोट्स में लिखिए. अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.